मुकस्सा मरियम के बातन से आया है, लेकिन उसकी पैदाइश का तल्लक जो है सिर्फ मुकस्सा मरियम या यूसुफ या यहूदी कौम से नहीं है, बल्कि उसकी पैदाइश का तल्लक दुनिया में रहने वाले हर इंसान के साथ है। आमीन। ये अहम बात है जिसे समझने की जरूरत है। बराहे करम हमारे लिए दुआ करे कि खादी हमें हमारी अपनी गिरजा घर दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खादी का कलाम सुन सके। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराह करम +9 231987 94893 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. बुजुर्ग लुका तबीब के वसीला से लिखा गया अंजीली बयान 2 चैप्टर और यहां से हम 10वीं आयत 2 चैप्टर की 2 आयतें हम देखेंगे, 10वीं और 11वीं आयत। तो बड़ी ये दोनों आयतें या ये जो हिस्सा है बहुत मशहूर है और बच्चों को भी ये याद है, लेकिन यही से अपनी रहनुमाई के लिए चल पाते हम सीखेंगे। तो गौर से सुनिए, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और ये तब का वाकया है जब यीशु की पैदाइश हुई। जब यीशु मसीह जिस वक्त पैदा हुए रात को उनकी पैदाइश हुई, तो ये तब का वाकया है। तो क्योंकि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन में अब दाखिल हो चुके हैं, तो जरूर है कि हम शुरू में ही जो मसीह की पैदाइश के तल्लक से कुछ बातें हैं हम उन्हें सीखें, ताकि हम आगे और मजबूत होकर यीशु की पैदाइश की सेलिब्रेशन में खूब आगे बढ़ सके। तो लिखा है, चरवाहे थे जो रात को मैदान में थे, तो इनके पास एक फरिश्ता पैगाम लेकर आया। तो आइए इस पैगाम पर गौर कीजिए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। 11वीं वर्ष कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। तो आइए इसको जरा गौर से कुछ देर के लिए सीखिए। दुनिया के अंदर जब किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है, जरा गौर से बात को सुनिएगा और समझिएगा, तो उसके पैदा होने की जो खुशी है और उसकी पैदाइश की जो खबर है वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनका उस बच्चे के साथ
یا اس کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ باقی جو ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو کبھی بھی کسی بچے کی پیدائش کی جو خبر ہے نہیں دی جاتی۔ تو یہ چرواہوں کو خبر دی گئی۔ آپ نے غور سے بات کو سمجھنا، یسوع کی پیدائش۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ بھی ہے فزیکلی طور پر، اور اس کے کوئی اولاد پیدا ہوئی، کوئی شاہی خاندان میں سے آگے کوئی بیٹا آیا، نسل بڑی، تو اس کی خوشی بھی محدود ہوتی ہے، یعنی اس ملک تک ہوتی ہے، زیادہ دور تک نہیں ہوتی کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ شاید اس بات کی سیلیبریشن کرے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے کسی کی پیدائش کی جو خبر ہے وہ صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا اس بچے کے ساتھ یا اس کے والدین کے ساتھ، خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی لنکس ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ہم اسے اوپر اپنی سطح پہ لے کے جائیں تو قومی سطح پہ بھی، تو وہ صرف ایک ملک کے لیے اگر کسی شاہی خاندان میں کوئی بچہ جو بہت خاص ہے اور آگے فیوچر میں وہ اس ملک کا بادشاہ بنے گا تو پھر اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے، لیکن وہ بھی محدود ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہاں جو ہے ایسا نہیں ہے۔ پیدائش بھلے ہی جانوروں کے استبل میں ہوئی ہے، اور جانوروں کا استبل کیا ہے؟ ایک کھرلی جسے ہم کہتے ہیں پنجابی، جہاں جانور چارہ کھاتے ہیں۔ اتنی پستی میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن پیدائش ضرور پستی میں ہوئی ہے، لیکن جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ ہستی بہت بڑی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش پستی میں ہوئی ہے، ہستی چھوٹی نہیں ہے، ہستی بہت بڑی ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر محض کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بھلے وہ فزیکلی طور پر داؤد کی نسل، یسی کا بیٹا، اس کی یسی کی نسل سے، داؤد کی نسل سے، بھلے وہ یہودا کے قبیلے سے، اور پھر بھلے وہ مقدسہ مریم کے باطن سے آیا ہے، لیکن اس کی پیدائش کا تعلق جو ہے صرف مقدسہ مریم یا یوسف یا یہودی قوم سے نہیں ہے، بلکہ اس کی پیدائش کا تعلق دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ آمین۔ یہ اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرشتے نے کیا کہا؟ بڑی خوشی کی بشارت کیا ہے جی؟ لوگ کسی کی پیدائش پر صرف خوشی ہوتی ہے، لیکن بڑی خوشی اور پھر خوشی کی بشارت، یعنی منادی، بڑی خوشی کی بشارت، بڑا اعلان۔ اور یہ اعلان محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ کوئی یسوع کو جانتا ہے؟ سنیے ذرا غور سے، آپ یسوع کو جانتے ہیں، آپ اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی جانتا
तो यीशु मसीह की पैदाइश उसके लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, आप उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई नहीं भी जानता यीशु कौन है, लेकिन याद रखिएगा कि यीशु की पैदाइश का ताल्लुक हर इंसान के साथ है। आमीन। गरीब के साथ भी है, अमीर के साथ भी है, गोरे के साथ भी है, काले के साथ भी है। कोई जैसा भी क्यों नहीं है, यीशु की पैदाइश का ताल्लुक हर इंसान के साथ है। आमीन। इसलिए जब हम क्रिसमस मनाते हैं, पैदाइश की सेलिब्रेशन होती है, तो याद रखिएगा हम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जरूर दुआ करें उनके लिए भी जो इस खुशी में शामिल नहीं है। और वो शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि वो यीशु से नावाकिफ है। लेकिन दुआ क्या करें? दुआ हमें करनी चाहिए कि खुदावंद उनकी आंखें भी खोले, क्योंकि यीशु सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए आया है। आमीन। ताकि वो खुदावंद को पहचान सके, यीशु की पैदाइश की खुशी में, इसकी सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। जो 11 वर्ष, और ये क्या है? कि आज दाऊद के शहर में, तुम्हारे लिए, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी खुदावंद। हाँ, तो बेसिकली अगर सिर्फ यहां तक हम कुछ रखेंगे तो यीशु मसीह खुदा का बेटा है, या फिर कोई फिजिकली तौर पर देखा जाए कोई बड़ी हस्ती या किसी बड़ी हस्ती का कोई बेटा दुनिया में पैदा होता है, तो वो बहस कुछ देर के लिए होती है। और उससे किसी गरीब का क्या ताल्लुक? सुनिएगा जरा गौर से। ये तो है कि वो बड़ी हस्ती का बेटा है, लेकिन खुशी का दुबाला होना जो है, खुशी भरपूर तौर पर हो और खुशी भरपूर तौर पर सब तक पहुंचे। अगर हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि फलां, तो हम कहते हैं कि सानू की ओदे नाल साडे किहड़े मसले हल हो जाने। यीशु खुदा का बेटा है, ये खुशी है। लेकिन खुदा का बेटा होने के साथ साथ हम इस खुशी को क्यों इतना सेलिब्रेट करते हैं, इसकी सेलिब्रेशन करते हैं? क्योंकि वो खुदा का बेटा होने के साथ साथ क्या है? हमारा मुनज्जी भी है। आमीन। वो क्या है? हमारा मुनज्जी है। ये खबर खुशी की खबर है, और ये बड़ी खुशी की खबर है कि यीशु खुदा का बेटा भी है, और हमारे लिए क्या है? वो एक मुनज्जी, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। जब उसे मुनज्जी कहा जाता है तो इससे मुराद क्या? सुनिएगा। बहस, मैंने जैसे कहा कि किसी से तल्लक हो और हम उस खुशी को बनाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसकी पैदाइश मुझे फायदा दे तो फिर मेरी खुशी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो यीशु की पैदाइश, जब मैंने कहा कि हर इंसान का उसकी पैदाइश के साथ क्या है? तल्लक। और तल्लक कैसे है? क्योंकि वो कुछ लोगों का मुनज्जी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का मुनज्जी है। आमीन। आमीन। और फायदा तो वही देगा जो उसने जानेगा, उस पे ईमान लाएगा। लेकिन फिर जब उसे ये कहा जाता है, गौर से सुनिएगा, फरिश्ते ने जब ये कहा उसे कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो असल में फरिश्ता क्या कह रहा है उन्हें? असल में उन्हें ये कहा जा रहा है कि जो पैदा हुआ है वो तुम्हारी नजात, तुम्हारी आजादी का सबब बनेगा। आमीन। वो तुम्हें आजाद करेगा। मुनज्जी का मतलब है बचाने वाला। तो कहा यह जा रहा है, फरिश्तों को अगर ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं है,
کہ تمہیں بچانے والا، تمہیں چھڑانے والا، تمہیں آزاد کرنے والا جو ہے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اب جب کسی کو یہ پتا چلے، سنی گا ذرا غور سے، اب کسی کو یہ پتا چلے کہ مجھے بچانے والا آ گیا ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، ہستی وہ اتنی بڑی ہے، یہ بھی ایک وجہ، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ آیا کس لیے ہے، بڑی ہستی آئی ہے لیکن آیا کس لیے ہے، وہ مجھے بچانے کے لیے آیا ہے۔ میرے مسئلوں کا حل جو ہے وہ اب نکل آئے گا کیونکہ منجی آ چکا ہے۔ اب جب کسی کو یہ پتا چلے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کی پیدائش کی خوشی کیا ہو جائے گی، اور دگنی ہوگی، اس کی سیلیبریشن میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم صرف خدا کے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے منجی کی پیدائش کی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ آمین۔ میرا بچانے والا آ گیا ہے، مجھے چھڑانے والا آ گیا ہے، مجھے نجات دینے والا آ گیا ہے، سو اس کی پیدائش ہے، سو میرے مسئلوں کا حل نکل آیا۔ تو پھر کیا ہوگا، خوشی اور دگنی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ تو سنیے گا، اگر تو محض آپ کی خوشی صرف اس حد تک ہے، بہنوں بیٹیوں ذرا غور سے سنیے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، خدا کا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ آگے والا حصہ آپ نہیں جان پائے کہ وہ میرا منجی بھی ہے، اور ابھی تک اگر آپ نے اس کو منجی کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، ابھی تک آپ کو کیونکہ جب آپ اسے منجی کے طور پر قبول کریں گے تو پھر منجی ہی آپ کو آزاد کرے گا۔ آمین۔ پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یسوع نے کیا کہا، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی میں آزاد ہو جاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ تو مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے، خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے۔ منجی آیا ہے، ہمارا منجی آیا ہے، خدا کا بیٹا آیا ہے، لیکن وہ جو بیٹا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا منجی ہے۔ جب ہم اسے منجی کے طور پر قبول کریں گے تو پھر میرے گناہ مجھ پر نہیں بلکہ وہ دور ہو جائیں گے۔ آمین۔ میں پھر گناہوں کی دلدل میں نہیں رہوں گا، میں پھر خوف کے اندر نہیں رہوں گا، کیونکہ منجی نے کیا کیا ہے، منجی نے میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ تو جو آج اہم بات ہے وہ یہ ہے، 2024 کا یہ کرسمس آپ جو ہے اس کی سیلیبریشن میں شامل ہو چکے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن 25 بھی گزر، جتنے بھی آپ کے سال ہے زندگی کے گزر جائے گے اس طرح سے۔ لیکن اہم بات کیا ہے کہ جس کی آپ خوشی منا رہے ہیں، کیا وہ صرف خدا کا بیٹا ہے یا آپ کا منجی بھی ہے؟ اگر وہ منجی ہے، اگر اسے منجی کے طور پر قبول کریں گے تو پھر صلیب کا سارا کام بھی آپ جس پہ اس نے اسی سارا نجات کا کام کیا، آپ اسے بھی قبول کریں گے۔ آمین۔ پھر صلیب کا کام بھی پورا ہوگا، پورا تو ہو چکا ہے، آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، پھر صلیب کا سارا کام بھی آپ قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، اور پھر گناہ کے اندر نہیں بلکہ آزاد ہو کر یسوع مسیح میں زندگی گزارے گا۔ آمین۔ حقیقی خوشی، دگنی خوشی آپ کی کب ہوگی کرسمس میں، جب یسوع مسیح کو منجی کے طور پر جانے، جب یسوع مسیح کو منجی کے طور پر جائے۔ صرف محض یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے کہ کرسمس ٹری بنانا یا بہت زیادہ لائٹنگ گھروں پہ لگا لینا، سٹار بہت سا بنا لینا، صرف محض ان سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں، ان سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا یا انکار کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ پوری طرح سے بات کو جانیں گے اور منجی کے طور پر اسے قبول کریں گے تو آپ کی جو خوشی ہے اب وہ اور دگنی ہو جائے گی۔ آمین۔ اس میں کیا ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا کہ وہ خدا کا بیٹا ہی نہیں بلکہ میرا
मुनज्जी भी है, जो जिसने मुझे मेरे गुनाहों से आजाद किया है, जिसने मेरी परेशानियों से मुझे निजात दी है। आइए मेरे साथ एक हवाला लीजिएगा, यूहन्ना का पहला खत, बस 2-4 मिनट। यूहन्ना का पहला खत और इसका 4 चैप्टर। 13 वर्ष, बल्कि 14 आयत जो है, 14 वर्ष, इसको देखिए, लिखा है, सुनिए गौर से, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं। हमने देख लिया है और गवाही देते हैं। बुजुर्ग ये कह रहा है, अपनी जिंदगी का जो तजर्बा वो रखता है, वो उसकी बात कर रहा है, यीशु की बात कर रहा है कि हमने उसे देख लिया और गवाही देते हैं। सिर्फ सुना नहीं है बल्कि देख लिया कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। हालेलुया। तो बेटा आया है, लेकिन वो सिर्फ बाप का बेटा नहीं है। बाप ने बेटा इसलिए दिया है दुनिया को कि वो दुनिया का क्या है, मुनज्जी है। दुनिया की नजात जो है किसी और के जरिया से नहीं है। और याद रखिएगा, आज भी मैं अपनी बहनों से, बेटियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मसले हल क्यों नहीं होते हैं। मसले मेरी बेटियों बहनों हल ही हल है। आप यीशु को मुनज्जी कबूल तो करें, मुनज्जी के तौर पर जाने तो सही। जब आप उसे मुनज्जी के तौर पर जानेंगे, कबूल करेंगे, तो आप किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका मुनज्जी एक ही है, जो खुदा का बेटा यीशु है। और वही आजाद करता है, वही शिफा देता है, वही मसलों का हल है। किसी और के वसीले निजात नहीं, किसी और के वसीले निजात नहीं है। आसमान के तले आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया। मेरी बात सुनिए, इससे इस आयत को गौर से देखिए। जब कोई और है ही नहीं, तो हम किसी और के पास क्यों जाएंगे? फिर हम क्या कहेंगे, वो सियाना है जी बड़ा। हमें क्या किसी सियाने से, वो कितना भी बड़ा सियाना क्यों ना हो, हमारे यीशु से बड़ा सियाना नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई कितना भी बड़ा क्यों, अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यीशु से बड़ा अच्छा कोई हो नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा तबीब क्यों ना हो, यीशु से बड़ा तबीब कोई हो नहीं सकता। हालेलुया। आए जोरदार खुदावत के लिए याद रखिएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए कलाम में ये लिखा है कि कोई किसी और के वसीले नजात नहीं है। इसका मतलब फिर बेटियों क्या हो गया कि लोग लाख कोशिश करें, किसी और को वसीला बनाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दरवाजा एक है, दरमियानी एक ही है, और बाप तक जाने की राह भी एक ही है, और वो उसका इकलौता बेटा यीशु है। और सुनिएगा, ना सिर्फ राह एक है, ना सिर्फ दरवाजा एक है, ना सिर्फ दरमियानी एक है, बल्कि कामिल कुर्बानी भी एक ही है, और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यहाँ तक के जब ये सारा कुछ है, सुनिएगा, तो यही भी याद रखिएगा कि शाफी भी एक ही है, कोई और नहीं है। जितने मर्जी जाओ, जितना मर्जी पैसा खर्च करो, जो मर्जी बेटियों बहनों कर लो, मसले कोई हल नहीं करेगा। मसलों के हल के लिए आपको खुदा के बेटे यीशु के पास आना पड़े करेगा, क्योंकि बाप ने उसे
बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। दुनिया नजात बेटे के वसीला से पाती है, दुनिया की शिफा बेटे के वसीला से है। दुनिया के मसलों का हल किसी और के पास नहीं है, सिर्फ खुदा के बेटे के पास है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए जब मैं क्रिसमस भी मना रहा हूं और मसले मेरे जो कि तू है, तो मुझे आज इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है कि मुझे यीशु को सिर्फ खुदा का बेटा नहीं बल्कि अपना मुनज्जी भी मानना है। मुनज्जी के तौर पर भी उसे क्या करना है? कबूल करना है। मुनज्जी के तौर पर भी उसे जानना है। जब मैं इस तरह से आऊंगी या आऊंगा तो फिर मेरे मसले सारे हल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं मसलों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुनज्जी ही नजात देता है, मुनज्जी ही छुड़ाता है, मुनज्जी ही रिहाई कर देता है, मुनज्जी ही मसलों को हल करता है। बनी इस्राएल कौम का मुनज्जी कौन था? फिजिकली तौर पर मिस्र की गुलामी से कौन निकाल कर लाया? उनका मुनज्जी मूसा था। लेकिन यहाँ वो है जो मूसा से भी बड़ा है। वो ना सिर्फ फिजिकली गुलामी बल्कि रूहानी गुलामी से भी आजाद कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब आजादी में ये क्रिसमस मनाए, रूहानी तौर पर आजाद होकर। आए अपनी आंखें बंद करें, गुनाह की गुलामी से आजाद होकर, फिर देखिए खुशी कितनी दुगनी होती है।